रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मतलब फिर बाद में याद ना रहे, इससे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना जरूरी रहता है। वो चलिए फिर हम आज डाउट्स हैं हमारे, जो भी कोई डाउट्स हैं तो हम डाउट्स लेते हैं अभी। किसी को भी कोई डाउट्स है? Hmm. यस, वी कैन स्टार्ट। Yeah, so Dirji, I think the video was in Hindi, so I could understand only a few things, but I want to have a clarification. Uh, could you explain that Lagna, house, and Rashi in English? Because I think Lagna and house number was same, so that seemed to be some important concept there. डिफरेंस बिटवीन लगना एंड राशि ना? When we draw the chart, 12 houses, you said Lagna, and then you said if it is a Mithun Rashi, you said like it's three. That part I couldn't understand actually. I saw you writing as three, but I couldn't understand that. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस ब्लैंक पेज इज विजिबल? Yes, please. So look, this is the first house, okay? So this first house is also known as ascendant. What it is known as? Ascendant, okay? And this is also known as Lagna, Okay. okay? Suppose if number 1 is written here, then it will be Mesh Lagna, Okay. okay? If 2 is written here, then Vrishab Lagna, okay? Okay, are you getting? So the house remains same. House and remains same, yeah. So Lagna. Okay, got it. So suppose this is our directions: east, west, north, south, okay? So whatever this Lagna means, Lagna is in east, okay? And this is below Lagna is west, okay? This is south, and this is north, okay? So at the time of birth, whichever Rashi rises from the east, that becomes our Lagna, okay? Whatever Rashi rises from the east. Suppose here 5 is written. In Lagna, what is written? 5. So it means when sunrise was happening, when the birth of person was happening, then at the time of birth of the person, Rashi rising from the east was Leo. Okay. Suppose number 8 is written here. So it means when the person was born, then Rashi rising from the east was Scorpio. Is this clear? Okay. So now this is the position of Rashi, or we can say the Lagna means the Rashi rising from the east. And suppose here it is 1, it is 2, it is 3, it is 4, it is 5, it is 6, it is 7. And suppose moon is sitting here in 7, okay? So the place where moon is sitting,
इट इज नोन एज जन्म राशि. Place where moon is sitting is known as Janam Rashi. Okay. So we can say in this case, if we talk about Lagna, then this is Mesh Lagna. And if we talk about Rashi, then it is Tula Rashi. Rashi means the place where moon is sitting. And Lagna means whatever Rashi is rising from the east. Okay. Are you understanding? Yeah, so we can make this diagram and we can write this down. श्वेता जी, आप मतलब प्राइवेट आप होम्योपैथी वाले डॉक्टर हैं कि एलोपैथी वाले मेन वाले डॉक्टर हैं? मेरा होम्योपैथी हुआ है बट आई एम डूइंग अ जॉब. अच्छा अच्छा, मतलब एलोपैथिक वाला कि कैसा वाला, आयुर्वेदिक वाला? No, I practice allopathy only. एलोपैथिक ओनली, ओके. हम्म. हाँ, तभी क्योंकि एलोपैथिक में होता है टाइम वगैरह थोड़ा सा, फिर मतलब डॉक्टर्स का हमें पता ही है कि लेट होता है. मतलब हमारा मेडिकल स्टोर है हमारा, मतलब मेरे जो फादर का प्रोफेशन है, तो फिर वो 10 बजे से पहले तो कभी घर नहीं आते वो. नहीं, वही होता है कि आई कैन नॉट मेक इट, मतलब घर आना टाइम पे नहीं होता है. हमारा एक ना डॉक्टर के साथ में अटैच्ड है, मतलब हमारा मेडिकल स्टोर. तो वो फिर 10 अच्छा. से पहले तो मतलब पापा आप कभी भी नहीं है, मैं उन्होंने कभी नहीं देखा आज तक 10 से पहले घर में. ओके. तो मुझे मालूम है कि मतलब वेरी टफ होता है ये, मतलब काफी. हाँ, तो इसलिए मेरे बहुत सारे लेक्चर्स मिसिंग है अभी, तो देखते हैं. आपने भेजा है तो आई जस्ट चेक इट. ओके. जिनसे मैंने सीखा था वैदिक धर्म संस्थान में, जो मेरे टीचर थे, ही इज अ डॉक्टर फ्रॉम एम्स अजमेर. वो एम्स अजमेर के डॉक्टर हैं और वो एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं. तो ही वॉज वाओ, माई ग्रेट. टीचर. फ्रॉम हिम आई हैव लर्न. गुड. उनसे मतलब मैं टच में भी रहता हूँ, कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है तो उनसे भी डिटेल में डिस्कशन करता रहता हूँ मैं. ठीक है, रब करें. सुधाकर जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस? Yes, got it. Just was clear. भैया प्लीज एक बार फिर से बताएंगे आप, मैं तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया. चैतन्य जी नमस्ते. हम What जय doctor? गुरुदेव. हम बस वही बता रहे हैं लग्न और राशि में डिफरेंस क्या होता है. तो लग्न जहाँ से जो हमारा जो ईस्ट होता है, यानी पूरब दिशा से जो राशि उदय होती है जब हमारा बर्थ होता है, तो वो लग्न हो जाता है हमारा. और चंद्रमा जहाँ पे होता है वो हमारी राशि हो जाती है. ओके. अरे चलो मैं ना दूसरा डायग्राम बनाता हूँ फिर इसके लिए. सुधाकर जी आपको, श्वेता जी आपको बाकी लोगों को समझ में आया? राधिका जी? मेरे को ये डायरेक्शंस है ना, ये नहीं पता चल रहा कि ईस्ट वेस्ट ये कैसे हम वो डिसाइड करेंगे. आपको याद करना है, डिसाइड आपको नहीं करना. जिन्हें डिसाइड करना था वो डिसाइड कर चुके हैं, आपको बस याद करने का काम करना है. हाँ, मतलब कैसे पता चलेगा. पता आपने क्या करना है, ईस्ट के बताया. सामने भाई, ईस्ट के सामने वेस्ट है. और उधर मतलब आपको तो हाँ याद वो तो करना है ना भाई, ईस्ट के सामने वेस्ट होता है, हाँ हमने जो जी, बता दिया आपको उसको याद करना है. ठीक है. 3. East. चलो. अब देखिए चैतन्य जी, देखिए यहाँ पे ना आप याद कर लो, ये ऊपर वाली डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन, नीचे अच्छा. वेस्ट डायरेक्शन, इधर साउथ डायरेक्शन, और इधर नॉर्थ डायरेक्शन. इसको याद कर लेंगे हम, है ना. जी जी. वी विल रिमेम्बर दिस. ओके सुधाकर जी, हाउ इज योर न्यू होम? आर यू डूइंग गुड इन योर न्यू होम? Actually, it's not fully done, Ji, so so it got delayed. So that's why I'm like slowly catching up on the missed sessions. So लोग चैतन्य जी देखिए, अभी देखिए, जी. ये जो ईस्ट डायरेक्शन है ना, वहां हाँ पे जी. जो हमें फर्स्ट हाउस तो पता है क्या होता है हमारा. हाँ जी, जो लग्न. फर्स्ट हाउस होता है ना, उसे लग्न भी कहते हैं. उसे हम क्या कहते हाँ हैं? जी, लग्न. लग्न. ठीक है, तो ये जो है, ये जो लग्न है, कौन सा लग्न हो गया? मिथुन लग्न. बताइए हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी. और जो राशि हुई, राशि मतलब जहाँ पे चंद्रमा है, द प्लेस वेयर मून इज सिटिंग, तो हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पे जो राशि की बात करेंगे तो राशि कौन सी हो जाएगी हमारी? वृश्चिक राशि.
श्वेता जी, सुधाकर जी, राधिका जी, रमेश रमेश जी नमस्ते, रमेश भैया नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते भैया, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। थोड़ी सेवा आएगी अभी, है ना? अब आगे के सेशन अब हम थोड़ा सा, हाँ रमेश हाँ, रमेश भैया, अब हम थोड़ा सा मैं आपको भेजूंगा अभी, है ना? और जरूर जरूर वैसे भैया। हम अब सेकंड फेज की तरफ, अब बस इस हफ्ते के बाद में दृष्टियां और हमारी ये सब कवर हो जाए, फिर अगले हफ्ते से बिल्कुल। हम आसान, अब मजा आएगा अगले हफ्ते से, तो थोड़ी सी नई स्लाइड्स हम बनाएंगे, है ना? तो मैं आपको कुछ भेजूंगा उसके लिए। जरूर 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 भैया। मैंने ये बुक दिखाई थी, मैंने ना कल नई बुक मंगाई है, पता नहीं मैंने दिखाई थी लास्ट के, नहीं दिखाई थी, ट्रांजिट। दिखाता हूँ, ये देख रही है मेरी नई book? ट्रांजिट, ओके। जी। ये लास्ट टाइम दिखाई थी? नो नो। नहीं, पहले नहीं नहीं भाई। दिखाई थी, मैंने नई बुक मंगाई है, ट्रांजिट की है, और ट्रांजिट को स्टडी करने के लिए अभी बेटर तरीके से। मैंने भी कल एक नई बुक ऑर्डर की है, के एन राव सर की है, बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी है लेकिन वो। के.एन. राव सर की बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यस। हाँ बढ़िया, मैं हो दिखाऊँ सकता आपको? है हम जो कवर कर रहे हैं इस समय। देखता हूँ मेरे पास अच्छा। ये वाली मंगाई है क्या आपने? हाँ शायद यही है। हाँ, हिंदी हाँ, हिंदी वर्जन है उसका, हाँ। अच्छा, हिंदी वर्जन मंगाया होगा। मतलब के.एन. राव सर, मतलब कि पायनियर ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन इन इंडिया, और ही इज हम्म। लिविंग लेजेंड इन एस्ट्रोलॉजी। और इन्होंने मतलब बहुत ही, इनके प्रिडिक्शन मतलब बिल्कुल मिनट बाय मिनट करते हैं ये, कि ऐसा अच्छा। आपकी लाइफ में होगा, ये बता देते हैं 2:10 पे होगा इतना एक्यूरेट रहता है इनका प्रिडिक्शन। तो मेरे पास भी उनकी बुक है। तो हम व्हाइट बोर्ड पे थे अभी, तो चैतन्य जी आपको समझ में आया? ये देखिए, राशि वृश्चिक राशि हो गई, और हाँ जी। लग्न लग्न हो गया, बताइए समझ में आ रहा है? हाँ जी। अभी अभी श्वेता जी, श्वेता जी जी, ये भैया। इसको लग्न को मिथुन बोल रहे हैं भैया। हाँ लग्न राशि भी बोलते लग्न, हैं क्या इसको, मिथुन को? हाँ लग्न बोल, लग्न राशि। लग्न राशि बोल दीजिए। जन्म राशि जो है वो हाँ हाँ। वृश्चिक राशि हो गई। हम्म। देखो, जहाँ पे चंद्रमा होता है वो जन्म राशि, जन्म राशि। और जो चार्ट में असेंडेंट लिखा था, असेंडेंट वो लग्न राशि, असेंडेंट समझ लो, असेंडेंट होता है ना हमारी एप्लीकेशन में, यस। वो क्या हो गया? लग्न राशि। लग्न राशि। लग्न राशि। अगर कोई कह रहा है मिथुन लग्न, तो वो कह रहा है आपके वो फर्स्ट हाउस की बात कर रहा है। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस अगर मिथुन है। अगर किसी ने बोला मिथुन लग्न, मतलब वो क्या कर रहा है, आपका फर्स्ट हाउस है, वहां पे 3 नंबर लिखा मिलेगा आपको। और हम्म। अभी कोई मिथुन राशि बोल रहा है, उसका मतलब क्या है कि वहां पर मून जहाँ पर है। आपका वहां बैठा होगा। ठीक है। यस। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, और चंद्रमा मेरा यहाँ बैठा हुआ है। तो अभी बताइए कि मेरा लग्न क्या हुआ और मेरी राशि क्या हुई? लग्न कुंभ लग्न है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। राशि मिथुन। 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 हमें अब मतलब हमें नंबर से याद हो जाना चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूं 7 नंबर, तो तुला, ऐसे याद हो जाना चाहिए हमें। 5 नंबर यानी कि सिंह, ऐसे हमें याद होना चाहिए अभी। बाय सीइंग द नंबर वी शुड रिमेम्बर द राशि। ओके, यस। ओके, दिस भैया, ऑल नीड। ये नहीं समझा कि पहले जो, मतलब सबसे ऊपर वाला जो ईस्ट का जो घर है, हाउस है, उसमें जो ये समझा कि वो लग्न राशि है। लेकिन जो मून बोलते हैं, तो वो मून कहाँ पे, वेस्ट वाले इसमें आएगा, या उसके बाजू के स्क्वायर में आएगा, या फिर उसके ट्रायंगल में जो यहाँ पे अभी 3 लिखा हुआ है वो वहां तो पे चेंज आएगा होगा वो? ना, वो तो देखो आपके बर्थ के हिसाब से चेंज होता रहेगा ना। वो तो प्लेनेट है, आगे बढ़ रहा है। मेरे जन्म के समय मून यहाँ पे था, हो सकता है किसी अच्छा। और के जन्म के समय मून चेंज अच्छा, हो। वो शिफ्टिंग हो सकता है, मतलब हाँ वो वैसे शिफ्ट है, जैसे। वो तो पर्सन टू हाँ, पर्सन डिपेंड करेगा। लग्न भैया का हाउस है वो जैसे फिक्स है, वैसे मून का फिक्स नहीं रहता, मतलब दैट इज शिफ्टिंग ना, अकॉर्डिंग टू हाँ, द। क्योंकि देखो कुछ ओके भी ओके फिक्स ओके। नहीं है, प्लेनेट तो मूव कर रहे हैं ना हमेशा, प्लेनेट फिक्स अच्छा थोड़ी है। अच्छा। वो तो ओके प्लेनेट ओके मूव ओके। कर रहे हैं। अब जैसे 11 के बाद या 12 आ जाएगा, वो तो नहीं चेंज नहीं होता भैया, रहेगा। मतलब जैसे लग्न का जो हाउस है वो फिक्स है, जैसे ईस्ट वाला जो हाँ हाउस है, हाउस फिक्स है, वैसे उस राशि हिसाब मूव, से राशि मून। चेंज हो हाँ। रही है उसके अंदर। हाँ, अच्छा, ओके 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 ओके। राशि फिर। जैसे भैया फर्स्ट हाउस में मून बैठा है तो दोनों राशि एक हो गई। हाँ, अगर हम अभी बना देते हैं ना उसको भी,
हाँ, वो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। Dirji, I have a question. So the house where moon is sitting, that's Rashi, or in this example, moon is sitting in fifth house, but you wrote 3 there. So moon can be in fifth house, but then the Rashi could be Mithun Rashi. या हाँ, तो देखो अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखा है और चंद्रमा भी यहाँ पे बैठा है, मीन्स लग्न एंड राशि राशि आर सेम। जन्म राशि कुंभ या सब कुछ सेम ही है, एवरीथिंग इज सेम, लग्न इज सेम एंड राशि इज ऑल्सो सेम। Look, basic requirement is to study at home, which we are not doing. That's why we are having a lot of questions. So I think it's better for us to study at home. Then only we will have less number of questions. रमेश भैया यस फिर बताइए, आपका अभी लग्न बताइए और राशि बताइए। अगर देखिए मैं बोल रहा हूँ लग्न क्या है, तो आप जो नंबर बताओगे वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट हाउस में, और जो राशि बताओगे वहां पे चंद्रमा को डाल दूंगा। बात समझ में आ रही है? बताओ राधिका जी, आ रही है बात समझ में? लगन आएगा फर्स्ट पे। हाँ, और जहां मैं हाँ, बोलूंगा राशि तो चंद्रमा वहां पे लिख दूंगा जहां पे राशि होगी। मतलब यस उसकी जो, हाँ, जो एग्जैक्ट 12 में से जो भी होगा वो हाँ, उस वाले उसमें रमेश भैया उसकी चलिए राशि बताइए, है। चलिए बताइए अपना डिटेल बताइए। राशि लग्न बताइए और राशि बताइए। 12 से स्टार्ट करते हैं भैया, मीन से। अरे स्टार्ट तो बच लोग करेंगे ना, आप तो बता दो, मैं इन लोगों से करवाऊंगा ना, फिर बच्चों से, हमारे सब हमारे स्टूडेंट से। अच्छा हमारी क्लास लगेगी। लग्न है भैया मीन, लग्न है, देखिए अभी लग्न है हमारे पास मीन, ठीक है, हम्म। और राशि है तुला। और राशि है तुला। तुला। तुला चलिए हम्म। अब चैतन्य जी, हाँ जी प्लीज भैया। इसको बताइए कैसे भरें, थोड़ा सा बताइए चैतन्य जी, अ, हमारी मैं भूल गया, थोड़ा हेल्प कर दीजिए मेरी इसको फिल करने में। लग्न मीन है ना भैया, तो फर्स्ट हाउस में ना हम 12 लिख देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। फर्स्ट हाउस में 12 लिख दिया, वेरी गुड। अभी देखिए, अभी मैं बताऊं, आपने 12 लिख दिया, अभी इसके हाँ बाद जी। अपन साइकिल बना देते हैं, फिर 12 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से ना हम एक एक आगे ऐड करते करते अलग अलग हाउसेस में लिख देते हैं, ठीक है। ठीक जैसे आपने कहीं 12 लिख दिया, तो उसके अगले में फिर आप 1 लिख देना, फिर 2 लिख देना, फिर 3 लिख देना, ओके। है। समझ में आ रही है? जैसे अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो उसके आगे 2 हो गया, ऐसे 3 हो गया। अब इनका जो राशि है वो तुला है, तो बताइए चंद्रमा को कहाँ बनाऊं मैं? साथ में। 7 में, इस 7 नंबर जहाँ लिखा है। 7 में। हाँ, जहाँ 7 नंबर। वेरी 7। गुड श्वेता जी, वेरी गुड चैतन्य जी, राधिका जी, वेरी गुड, गुड, सबने सही बताया। मतलब रमेश भैया का चंद्रमा अष्टम हो गया है लग्न से। सुधाकर जी, यस आस्क। So, Gigi, since it was in Hindi, just want to make sure my understanding is correct. So, with Lagna, we found that the ascendant house or the first house is 12. Then we start the circular one, like 1, 2, 3, 4. And the seventh, Tula is in 7, or Tula Rashi is 7. So, we have moon there, but it's actually the 8th house. Okay. गुड, वेरी गुड, गुड, गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। भैया एक क्वेरी है, हाँ हाँ, ये बिल्कुल जो 1 to 12 जो नंबर्स लिखे हैं वो हम्म, किस सीक्वेंस है, या मतलब किस हिसाब से लिखना है, वो मतलब देखिए अगर 1 के बाद में श्वेता जी 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, अब उनकी नहीं, मतलब पोजीशन चेंज नहीं करते। स्टार्ट कैसे करने का, जैसे उस दिन हमने कौन से तो लेक्चर में लर्न किया था कि बीच से स्टार्ट करते, लाइक जहाँ पे अभी 12 लिखा हुआ है वहां पे 1 आएगा, देन 4, 7, 10 ऐसे आता है ना। तो मतलब अभी बीच में जो 12, उसके नीचे 6,
उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 3 एंड राइट पे 9, ऐसा तो मतलब वो कैसे, वो नहीं समझा मुझे, लाइक मे बी वो लेक्चर मैंने देखा नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, अभी डिविजन्स हम बनाते हैं इसको थोड़ा सा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 10 हो गए। एक और बनाना। हाँ देखिए अभी पूरे हो गए हमारे। अभी देखिए ये ना ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। अभी देखो ये जो प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स ये तो मूव कर रहे हैं। जैसे ये सन है, ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे कोई भी प्लेनेट है, जुपिटर है, ये प्लैनेट्स मतलब मूव कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे बताइए। अब जैसे श्वेता जी है हमारी। अब सपोज करिए श्वेता जी का जो जन्म हुआ वो 4:10 पे हुआ। किस समय पे हुआ? 4:10 पे। ठीक है। अभी आप देखो कि ये जो ये फर्स्ट हाउस है हमारा। ये हमने सपोज करो कौन सा हाउस मान लिया? फर्स्ट हाउस मान लिया। तो इस समय जो राशि, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पर सपोज करो जो राशि थी वो कर्क राशि थी। कौन सी राशि थी? कर्क राशि थी। ठीक है। तो अब देखो कर्क थी, तो कर्क के आगे जो राशि आ जाएगी, अब देखो कर्क के पीछे हमारी कर्क के पीछे सिंह राशि है हमारी। कौन सी राशि है? सिंह राशि। कर्क का नंबर 4 है, तो उसके पीछे कौन सी राशि हुई? सिंह राशि। देखो इस तरह से सर्किल घूम रहा है हमारा। अर्थ है ना, अर्थ तो घूमेगी। बताइए आप बिल्कुल साइंस समझो अभी। अर्थ तो ऐसे ही घूमेगी, बताओ घूमेगी कि नहीं घूमेगी? तो सिंह होगी, सिंह के पीछे कौन सी राशि होगी? कन्या राशि। बताओ होगी कि नहीं होगी? यस हाँ समझ में आ रही है? भैया, वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे क्या ऐसे, मतलब लाइक पीछे ऐसा? अरे कैसे भी कर लो आप, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि अच्छा, देखो घूम ओके रहा है वो, ओके है ना। आप जिस ओके। आप तो समझो कि घूम रहा है वो, है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अभी हम नहीं समझ रहे हम। चलो आप एंटी क्लॉकवाइज बना लो इसको। चलो कोई बात, ऐसे दे लो। ओके एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं हम, चलो। अच्छा चलो कर गई है। अभी चलो ऐसा ऐसा घुमाते हैं मुझे। ठीक है, ऐसा घूम रहा है। ठीक है। तो यह 4 नंबर है, इसके पीछे कौन सा है हमारा? सिंह है। ये 5 नंबर है, 3 है। कन्या है। ये कौन सा नंबर है? 6 नंबर है। फिर तुला है। ये कौन सा है हमारा? 7 नंबर है। ठीक है। बताइए अब आपका जो जन्म हुआ वो कब हुआ? और ये देखो ये ऐसे सब घूम रहे हैं, तो राशियां भी तो चार घूम बज रही के है ना। दस राशियां मिनट भी तो पे देखो इस तरह से आगे घूमेंगी कि नहीं घूमेंगी? बताओ। मतलब मिथुन राशि जा चुकी, बताइए मिथुन राशि हो चुकी कि नहीं हो चुकी? क्यों श्वेता जी? हो चुकी। और एक सेकंड मैं ना अपना हाँ कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ। एक सेकंड मेरा ना, तो अब नीचे का राउटर कनेक्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ तो देखिए श्वेता जी और बाकी सब लोग अभी देखिए वो आगे बढ़ गई। अब मिथुन से पहले क्या आया होगा? वृषभ आया होगा। ठीक है। तो दिस इज रिवॉल्विंग। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? अरे भाई। अब देखिए अब आपका जन्म कब हुआ? 4:10 पे हुआ। तो उस समय फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आई? कौन सी राशि आई बताइए? कर्क। देखो मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट हाउस है, ये कर्क। सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है। देखो जो सर्किल में वो हाउसेज है।
तो फर्स्ट हाउस में कर्क राशि आई, बताइए। हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। आ गई, अभी मतलब अब देखो, अब लग्न जैसे, राशि इस कर्क। हाँ लग्न राशि अभी हाँ। कर्क हो गई। अभी आप ये हम्म। देखो कि अब हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड हो, आपकी फ्रेंड है, सपोज करो नीलम एक फ्रेंड है आपकी, उसका बर्थ हुआ 6:30 PM में। उसका बर्थ कब हुआ? 6:30 को। तो उस समय जब क्या हुआ कि जब इनका बर्थ हुआ 6:30 PM पे, तो उस समय कर्क राशि आगे बढ़ गई। उस समय कर्क कहाँ पे आगे आगे बढ़ के अब देखो, जब आपकी फ्रेंड का जन्म हुआ होगा, तो कर्क यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो साइकिल आगे बढ़ गई ना, और यहाँ पे कौन सी राशि आ गई? सिंह राशि आ गई। बात समझ में आई? तो इनका जो जन्म हुआ होगा, आपका जब जन्म हुआ तो उस समय आपका लग्न क्या हो गया? कर्क लग्न हो गया। और नीलम जी का जब जन्म हुआ तो उनका सिंह। लग्न क्या हो जाएगा? सिंह। सिंह लग्न हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आ रही है? यस। तो इस तरह से हो रहा है। अब आप देखो, जिस जैसे जैसे ना, अब हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? वन डे में 24 आवर्स। 24 आवर्स होते हैं, और टोटल राशि कितनी है हमारे पास? 12। 12 राशि है। तो वन राशि इन वन हाउस, एक राशि एक हाउस में कब तक रहेगी? 24/12, यानी कि 2 घंटे तक रहेगी। बताइए, बताइए। यस। रहेगी। तो बस, अब आप जब 4:10 पे पैदा हुए तो कर्क था। अभी नीलम जी 6:30 बजे हुई, तो उस समय लग्न क्या हो जाएगा? अब लग्न आगे बढ़ जाएगा। उस समय लग्न क्या हो गया हमारा? सिंह हो गया। उस समय लग्न हमारा सिंह लग्न हो गया। अभी जैसे रमेश भैया हैं, अब रमेश भैया भी उसी दिन पैदा हुए। रात के कब पैदा हुए रमेश भैया? 9 बजे पैदा हुए। तो 9 बजे फिर अब रमेश भैया का जो लग्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कन्या लग्न हो जाएगा। हम्म। और उसके सुधागर जी हैं, सुधाकर जी 11 बजे पैदा हुए रात में। तो तब तो राशियां चेंज हो जाएंगी ना, अब तब तुला लग्न हो जाएगा उनका। तुला हो जाएगा। बताइए, यस। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? यस भैया। सुधाकर जी, I will upload it with English subtitles, okay? Because few things are, you know, it's all I am explaining science geography, so I will upload an English subtitle, okay? Thank you. But Diji, is it exactly 2 hours? And when does that transit? Exactly 2 hours. Look, 24 hours in a day and 12 rashis, so 24/12, 12 to the 24, exactly 2 hours. But does it also start in the midnight, or like does it change based on the sunrise or some? It depend upon sunrise, but it will go in Murat class, okay? We will further discuss in Murat class, okay? So it will go in separate Murat class discussion topic. चैतन्य जी, समझ में आ रहा है? नई नॉलेज आ रही है? जी भैया, आ रहा है समझ। बताइए, पूछिए चैतन्य जी, आप पूछिए बिल्कुल। और कोई डाउट है, कोई क्वेरी? आज तो क्वेरी की क्लास हो रही है हमारी। और ये हम क्लियर यूट्यूब हो पे गई। जनरल अपलोड भी कर देंगे इसे, क्योंकि ये हमारे कोर्स की नहीं है, तो और इसको बेनिफिट और भी लोग भी ले पाएंगे। और कोई डाउट है चैतन्य जी? कुछ कुछ नई चीज सीखी आपने? और कुछ बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिए। बिकॉज कहते हैं कि क्वेश्चन पूछे लर्निंग होती है ना हमारी। जी जी। आपने बहुत अच्छा आज बनाया, इतना अच्छा लगा आपने, बिल्कुल अच्छे से। आप डिटेल स्टडी जो आप करते हो ना, तो वो डेफिनेटली मतलब आपको बहुत आगे लेके जा सकती है किसी भी फील्ड में। मतलब आप तो हमारे साथ पढ़ रहे हो, हमारा मतलब बहुत अच्छी बात है, आप हमारे साथ रीड कर रहे हो। आप थोड़ा सा और जी अच्छे से अगर एफर्ट्स करोगे तो फिर मतलब बढ़िया आगे रहेगा। जी, कोशिश करूंगी भैया। चलिए सुधाकर जी, यस आस्क। So this is my second question on the
the classes that I missed. So the after this Lagna, I think you explained about the friendship of planets, but then you explained a lot of things in Hindi. Is it just to like Yes, it is just story. It is just story, like any like movie, Bollywood movie. No truth, no reality. Just metaphor to connect things. Fine. So, and our thing is like I mean, one line summary is like we need to memorize that friendship and any. Yeah, we need to memorize that friendship, but the stories I made just to make memory simple. And there are only two changes in the earlier slide that you showed. Actually, I think in the Mars, Venus was in the. I think not at all. Venus was in the neutral, and then you changed to enemy, and then there's another one that you changed it actually. So those are the two changes. Yeah. Actually, this is a very basic table. It will all depend upon the charts. There is temporary friendship, other kind of things also, which we will more study. Yes. Okay. Neutral planet, we don't have to worry about. We mainly have to see the friends and we have to see the enemies. But I mean, I think the week before last you showed the slide and you asked us to copy it down. From that slide, there are only two changes. I think Venus moved from neutral to enemy for Mars, and Mars moved from neutral to enemy for Mercury. Am I correct? शुक्र ग्रह की पोजीशन चेंज हो गई है, तो मतलब वो वीडियो सब लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और मतलब काफी अच्छा रहेगा अगर कोई फैमिली में किसी का कुछ है, अगर मतलब मैरिज के लिए कोई जाना चाहता है, मैरिज के लिए किसी की बात चल रही थी, कुछ भी इस तरह का है, तो अभी दिसंबर मंथ इज वेरी गुड टू गो फॉर मैरिज, टू टॉक अबाउट मैरिज, मैरिज कन्वर्सेशंस होते हैं, कुंडली मैचिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो इसके लिए इस समय जा सकते हैं। और बताइए। There are no questions I have. श्वेता जी पूछिए, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं श्वेता जी। आप कह रहे थे कि आपको डाउट्स हैं, अभी तो सुधाकर नहीं, एक्चुअली वो 2 एपिसोड मतलब 2 लेक्चर्स देखे नहीं है, तो आई डोंट नो कि अभी तक जितना मतलब जितना था आपने पुराने सब देख लिए ना आपने। हाँ, वो तो देख लिया भैया। वो ऐप का भी नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ऐप खोलें अपन एक बार के ऐप देखें। हाँ, चलेगा। चलिए ज्योतिष ऐप है हमारा। देखिए मैं तो ज्योतिष ऐप में ही हमारा काम ज्यादातर करता हूँ वैसे तो मैं इसी को हम प्रेफर करते हैं। एस्ट्रोसेज भी कभी कभी मैं केपी में यूज करता हूँ एक्चुअली, अलग दूसरी जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेज है उसके लिए। जनरली तो ये हम यूज कर सकते हैं, है ना। और कोई भी देखिए एस्ट्रोसेज भी अच्छी ऐप है, आप एस्ट्रोसेज भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वो भी ऐप बढ़िया है, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं उसे कम यूज करता हूँ एस्ट्रोसेज को, लेकिन चाहेंगे तो हम उसे एस्ट्रोसेज भी, आप कुंडली एक एस्ट्रोसेज करके ऐप होती है, ये भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। ओके, एस्ट्रोसेज ऊपर लिखा आ जाएगा आपको, तो एस्ट्रोसेज है या फिर ये है, दोनों में से कोई भी ऐप आप कर सकते हो यूज। तो आप चलो श्वेता जी आप बताओ, आपको ना हॉरोस्कोप में क्या कहाँ पे दिक्कत आई आपको? वो मेरे में भी शो नहीं हो रहे जो आप बता रहे थे, आपके में क्या क्या शो हो रहा है। वो जो देखे अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? वो बीच में जो नंबर्स है ना, तो 3, 6, 9, 12 ऐसे है, तो मतलब वो नहीं समझ में आ रहा है वो एक्चुअली 3, 6, 9, 12 तो चेंज होंगे ना, क्योंकि वो तो हाँ, वो तो राशि चेंज बदल हो रही है ना जाएंगे अब। जब हाँ मैं अपने डिटेल्स डाल रही हूँ ना, तो हाँ। उसमें और चेंजेस आ रहे हैं लाइक। अच्छा मोबाइल से भी कर सकते हैं क्या क्लास? मतलब ये आप श्वेता जी आपने कैसे बनाया था? क्या? आपने जो बनाया था ना वो क्या नाम है, वीडियो बना के भेजा था, तो मोबाइल से कैसे करेंगे? मुझे आता नहीं करना एक्चुअली में। वो स्क्रीन रिकॉर्ड किया था मैंने, तो ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड किया था भाई। हम मोबाइल से कर सकते हैं जूम मीटिंग अपनी में? हाँ, जैसे क्योंकि क्या है स्क्रीन। मेरे पास ये वाला बोर्ड भी है और इस पे बहुत अच्छा मैं पढ़ाता हूँ। ये ऊपर दिख रहा है बोर्ड आपको मेरा? हाँ कुंडली दिख रही है बनी हुई? जी भैया, दिख रही है। तो मैं मतलब जैसे अभी कुछ वीडियोस भी बना रहा था ना इसके ऊपर, तो उस पे मतलब अभी जो मैं आपको सर्कल बना के समझा रहा हूँ ना, उसमें 10 मिनट लग गए, वो तुरंत हो जाता है उसके अंदर वो काम। कुछ भी और है तो लाइव क्लास में ना वो फिर अच्छी फीलिंग आती है, और मैं 10 चीजें ज्यादा बता सकता हूँ। क्योंकि पेन टैप से कुछ बनाना, ड्रॉ करना, फिर मिटाना, उसमें थोड़ा सा ना टाइम लगता उसमें टाइम लगता है है। पर तो मेरे पास वो वाला भी है, बट मुझे करना नहीं आता एक्चुअली में। या तो फिर आप ये भी कर सकते हो भैया, जैसे मैं अभी ऑनलाइन कोर्सेज लेती हूँ ना हैप्पीनेस का वगैरह, तो MBW उसमें मैं मतलब स्टैंड पे अटैच करके फिर करती हूँ, वो भी चलता है मतलब ऐसे। करेंगे एक बार, है ना। हाँ, तो
आप कब टीचर बने थे? 1 साल हो गया अभी, दिसंबर लास्ट ईयर। दिसंबर में? अरे आप, हाँ, मैं भी तो दिसंबर में ही बना था लास्ट ईयर। आप लेकिन आप कौन से बैच में थे? आप मेरे बैच में तो थे नहीं। मैं डिम्पल तो भैया, विराट विराट से डिम्पल जाने वाले भैया मैं। डिम्पल दीदी के बैच में थी मैं। अच्छा, डिम्पल दीदी के बैच में थे। अच्छा, अच्छा। मेरे रूम पार्टनर थे उसके अंदर तो, राजस्थान के थे, नाम तो मैं भी भूल गया उनका। अच्छा, डिम्पल दीदी के बैच में थे, हाँ, बगल वाली क्लास में। अच्छा, हाँ, ओके, बढ़िया, बिल्कुल हम तो साथ साथ ही बने थे। राजस्थान से विक्की थे क्या भैया? विक्की? मुझे ना नाम उनका, मैं मेरा रूम हाँ, पार्टनर है। विकी विकी विक्की। वो नवंबर में बने थे शायद। हाँ, नवंबर या दिसंबर में बने थे जयपुर हाँ, से। नवंबर में बने थे, क्योंकि वो मेरे वीटीपी के बैचमेट थे। मतलब हम लोग, मैंने डिम्पल दीदी के साथ पता नहीं, शायद ऑनलाइन आपको वीटीपी देखा किया भी था। होगा, याद नहीं हो मुझे, लेकिन हाँ, मतलब हाँ, मैंने जुलाई में वीटीपी किया था मेरा डिम्पल भी दीदी के साथ सेम ही में किया था ऑनलाइन। बिल्कुल भी। तो तभी वो मेरा बैचमेट था। ओके। हाँ, तो हमारे बैच में सबसे पहले वो टीचर बन मेरे गया भी नवंबर एक में, ना, और मैं मैं दिसंबर में आपको गई बताऊं, थी। वो एक बुड्ढे बुड्ढे से अंकल थे, वो आपके यहाँ भी तो 60 साल के थे, वो मेरे रूम राम पार्टनर। राम भैया थे, राम बागरी, ऐसा कुछ तो नाम था हाँ हाँ उनका। हाँ, वही बागरी बागरी, वही बागरी, वही हाँ, वही। वही। वो मेरे रूम पार्टनर थे अच्छा, टीटीपी। विक्की विक्की भैया अब गुरु पंडित भी बन के आ गए। गुरु पूजा पंडित। सही है, मेरा भी है दिसंबर में फेज 1। उसने अभी कंप्लीट किया, लास्ट मंथ कंप्लीट कर लिया। राकेश राकेश बागड़ी, हाँ, राकेश, सॉरी, अंकल जो राकेश थे बागरी। हाँ। वो मेरे रूम पार्टनर थे वो। हाँ, अच्छे थे। तो साथ में ही बने, अच्छा है फिर। हाँ हाँ, वही ना। लेकिन मेरे मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिजी हो गया, तो मतलब फिर मेरे मतलब वर्क के बाद में, तो मैं उतने कोर्सेज मेरे नहीं हुए अभी, लेकिन हाँ मतलब चलते रहेंगे मेरे, मतलब 5-6 कोर्सेज ही हुए हैं अभी तक। थोड़े बढ़ाऊंगे, अच्छा, बढ़ाने हैं ये तो है। क्योंकि मैं फिर दूसरे डोमेन में लग गया काफी, इधर इस साइड में एक्सोलॉजी बहुत ग्रो हो गई है। स्मॉल वर्ल्ड। हाँ। चलिए, और कोई डाउट, कोई क्वेरी और राधिका जी? आपका तो टेस्ट होगा राधिका जी, आपसे क्वेश्चन ही, आपका तो टेस्ट लूंगा मैं अब। तब आप मेरा पढ़ोगे, पता वरना चल आप गया मैं पढ़ने कैसा वाले स्टूडेंट नहीं हूँ। हो, आपका जब तक टेस्ट नहीं मैं होगा बैक बेंचर तब तक मैं पढ़ोगे बैक नहीं आप। बेंचर हूँ। हाँ। मेरी कुंडली देख ली होगी, पता चल गया होगा। 12 नंबर राशि जो है, 12 नंबर राशि का कौन है बताओ, स्वामी का नाम बताओ राधिका जी। मीन मीन राशि है। मैं स्वामी का नाम पूछ रहा हूँ, राशि का नाम बता रहे हैं। जुपिटर। मैं हाँ, देख चीटिंग के तो करके बताइए बता रही हूँ। भैया, देख के बता रहे हो, बढ़िया, चलो। चीटिंग याद करो करके लेकिन थोड़ा बता सा रही याद हूँ। करो। रमेश भी, और कोई चीज कुछ डिस्कस करें अपन? अभी तो है अपन 9 बजे तक तो बैठते ही हैं, कोई डिस्कस कुछ करना हो। मुझे पूछना था, ये नीच और ये उच्च का भाव था ना, ये क्या था? हाँ, ये ये तो सब मुझे टेबल है, नहीं समझ याद आया। करनी है। बताइए, मार्स जो है वो कहाँ पे नीच का होता है, बताइए चलिए। अच्छा, मैं कॉपी निकालती हूँ ना। बताइए रमेश भैया, मार्स कहाँ पे नीच का होता है? मार्स भैया तुला, तुला में नीच का होता है। नहीं, तुला में नहीं होता यार। मेष और तुला, मेष में होता है ना। अरे नहीं होता। अच्छा, मार्स की पूछ रहे हैं, अब मैं सिंह की सन समझ रहा हूँ। क्या? सूर्य की समझ रहा देखिए, हूँ मैं। मार्स, ये मैं सन, बताता हूँ, देखिए, जुपिटर, सबसे पहले हम पहला मंगल पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? मंगल पकड़ते हैं। मंगल। रिवाइज करा देता हूँ सबका, है ना। मंगल हाँ जी। जो होता है वो हमारा कैप्रिकॉर्न यानी मकर में नीच का होता है, मकर में उच्च का होता है, और कर्क में नीच का होता है मार्स। ठीक है, पहला प्लेनेट हम्म मंगल पकड़ लिया। सन से शुरू करते हैं ना, संडे से, सन से हम्म शुरू करते हैं। कल मैं सन से कंफ्यूज हो गया भैया। कोई नहीं, मैं सन से शुरू करता हूँ ना। सन, पहला प्लेनेट सन है, तो सन जो होता है वो 1 नंबर यानी कि मेष राशि में उच्च का होता है, और 7 नंबर यानी कि तुला राशि में नीच का होता है। ठीक है, एक्सॉल्टेड इन एरीज एंड डेबिलिटेटेड इन लिब्रा। 7 नंबर लीब्रा। ठीक है, दूसरा मंडे। लिब्रा। तो जो मून होता है हमारा, वो टॉरस में एक्सॉल्टेड होता है। हम्म ठीक है, और उसके बाद में देखिए, जो हमारा तीसरा प्लेनेट कौन आ गया हमारा, ट्यूसडे। ट्यूसडे यानी कि मंगल। तो देखिए, मार्स। मंगल जो होता है मंगल। हमारा, वो 4 नंबर हमारा, यानी कि जो 4 नंबर है कर्क राशि है, तो कर्क में नीच का हो जाता है, और 10 नंबर यानी मकर में एक्सॉल्टेड हो जाता है। ठीक है, मंगल के बाद क्या आ गया हमारा, चौथा, मरकरी। 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 तो मर, मरकरी 3 और 6, तो मरकरी का देखिए, ये इसके नंबर हो गए। तो मरकरी 12 नंबर यानी मीन में नीच का है, और 6 नंबर यानी कि कन्या में उच्च का होता है। डेबिलिटेटेड इन पाइसेस एंड एक्सॉल्टेड इन वर्गो। मरकरी।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा जुपिटर। तो देखो जुपिटर और मंगल का उल्टा चलता है, जहां मंगल उच्च का वहां जुपिटर नीच का, और जहां जुपिटर उच्च का वहां मंगल नीच का। तो जो जुपिटर होता है हमारा वो कैंसर यानी कर्क में उच्च का होता है, और जुपिटर जो होता है हमारा मकर में नीच का होता है, यानी कि जो कैप्रिकॉन है वहां पे नीच का होता है। ओके। हाँ, ये उसके बाद आ गया मार्स और वीनस। जुपिटर है ना उल्टा। हाँ, मार्स और जुपिटर उल्टा, और वीनस और मरकरी उल्टा। जहां वीनस उच्च का वहां मरकरी नीच का, और जहां मरकरी उच्च का वहां पे वीनस नीच का। यानी वीनस वीनस और स्पाइसेस में एग्जॉल्ट हो जाएगा और वर्गों में डेबिलिटेट हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का। क्योंकि वीनस तो प्यार है और मरकरी है प्रैक्टिकल थिंग, और प्यार और व्यापार की जोड़ी साथ में नहीं बैठती, तो उल्टा हो जाता है दोनों। जहां मरकरी उच्च का वहां वीनस नीच का, जहां वीनस उच्च का वहां पे मरकरी नीच का। ये याद करने का तरीका है। मंगल मार्स का और याद है तो जुपिटर में जुपिटर का अपने आप हो जाएगा, और जुपिटर का याद है तो मंगल का अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही मरकरी का याद है तो वीनस का हो जाएगा, वीनस का याद है तो मरकरी का हो जाएगा। सन और सैटर्न भी वैसा ही भैया। हाँ, सन और सैटर्न भी ऐसा है, बाप बेटे की ये दुश्मनी है वहां पे। जो बाप को पसंद है, जो पिता को पसंद है, वो बच्चे को पसंद नहीं है, और जो बच्चे को पसंद है वो पिता को पसंद नहीं है। अभी सन जो है वो मेष में एग्जॉल्टेड है, तो सैटर्न मेष में डेबिलिटेटेड है। और सन जो है वो तुला में डेबिलिटेटेड है, तो सैटर्न वहां पे उच्च के हो जाते हैं, यानी कि एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। एग्जॉल्टेड। ठीक है। हम्म, राहु और केतु का लिखवाया नहीं था, अभी बता देता हूं। राहु का 3 नंबर और 9 नंबर, यानी 3 नंबर मिथुन राशि में एग्जॉल्टेड और धनु राशि में डेबिलिटेटेड। राहु 3 नंबर, लिखा नहीं है, लिख लीजिए इसे, क्योंकि ये कभी आया नहीं है और मुझे एक्चुअली पढ़ाया नहीं गया था, बट मैं इसे फॉलो करता हूँ। तो राहु exalted in Gemini and debilitated in Sagittarius, और केतु का उल्टा हो जाएगा, exalted in Sagittarius and debilitated in Gemini। ठीक है। सारे प्लेनेट हो गए, कोई बचा? exalted and debilitated कवर्ड। सभी हो गए। मूल त्रिकोण डिस्कस कर लेते हैं। तो सन का मूल त्रिकोण लियो, लियो। मून का मूल त्रिकोण कर्क, कैंसर। मंगल का मूल त्रिकोण मेष, मंगल के बाद बुध, बुध का मूल त्रिकोण बताइए। वर्गो। वर्ग हो। गुड। वर्गो। मरकरी के बाद कौन आ गया? जुपिटर। वीनस। वीनस बताइए, वीनस का जुपिटर। मूल जुपिटर। त्रिकोण? Venus, Libra, वीनस मूल after त्रिकोण Mer लीब्रा। जुपिटर मूल त्रिकोण Sag, सैजिटेरियस, याद है सबको, गुड। सैटर्न मूल त्रिकोण एक्वेरियस। एक्वेरियस, वेरी गुड। राहु का मूल त्रिकोण एक्वेरियस ही बनाते हैं। देखो अब देखिए, राहु शनि ब्रदर्स, एंड केतु एंड मार्स आर ब्रदर्स। शनिवत राहु और कुजवत केतु, ये बोलते हैं इन्हें। जो राहु है वो शनि की तरह बिहेव करता है, और शनि जो है वो राहु की तरह बिहेव करता है। तो केतु का मूल त्रिकोण भी एरीज होगा भैया। हाँ, केतु का एरीज मूल त्रिकोण हो जाएगा। वैसे केतु और ये शेडो प्लैनेट्स होते हैं, तो इनका मूल त्रिकोण तक हम नहीं जाते, लेकिन ये है कि हाँ ये पावरफुल हो जाते हैं वहां पे। अभी देखो केतु जहां पे बैठेगा वहां पे गर्मी बढ़ाएगा, और राहु जहां पे बैठेगा वहां पे वायु बढ़ाएगा, क्योंकि राहु जो है वो हमारा एयरी प्लेनेट है, और केतु जो है एरी प्लेनेट। वो फायरी प्लेनेट है, तो इस तरह से फायर। फायर।
तो राहु और केतु जो होते हैं दोनों प्लैनेट्स हमारे, ये भी 180 डिग्री अपोजिट चलते हैं। तो जहां पे राहु एक्सॉल्टेड है वहां पे केतु डेबिलिटेटेड है, जहां पे केतु एक्सॉल्टेड है वहां पे राहु डेबिलिटेटेड है। वीनस मरकरी एक साथ चलेंगे, जुपिटर और मार्स एक साथ चलेंगे, राजा रानी अलग ही है, उनको किसी से कुछ है नहीं ऐसा। अभी देखो वीनस का जो अभी ट्रांजिट हुआ है वो अपने मूल त्रिकोण के अंदर हो गया, लिब्रा के अंदर। तो वेरी वेरी बेनिफिशियल पीरियड फॉर मनी, लग्जरीज, वेल्थ, एवरीथिंग के लिए पीरियड बहुत अच्छा है अभी। एक्टिंग, बॉलीवुड एक्टिंग, मीडिया इंडस्ट्री, इन सब के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वीनस इज इन वेरी गुड पोजिशन। ये लिब्रा राशि के लिए बेनिफिशियल है, सभी राशियों के लिए? सबके लिए, मतलब वो अब हाउस पे डिपेंड करेगा ना। ओके। वो आप वीडियो देखना, उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया है। अब वो अलग ठीक अलग है, मैं हाउस के देखूंगा। ऊपर है, जैसे कि आप देखो, मेष वाले हैं तो मेष वालों के लिए 7th हाउस में हो रहा है ये, तो उनको बिजनेस हम्म। से रिलेटेड हेल्प मिलेगी, वाइफ के साथ रिलेशन में हेल्प मिलेगी, और इन सब चीजों में हेल्प मिलेगी। अभी जैसे अब जो ये है हमारे, जैसे कि 2 नंबर वाले हैं, यानी कि जो अवृषभ वाले, वृषभ। उनके लिए छठे घर से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, बट जॉब जॉब के लिए अच्छा रहेगा। बट देखो 6 नंबर मरण कारक स्थान माना जाता है वीनस के लिए, तो वहां पे उनका गोचर अच्छा नहीं माना जाता। 6 नंबर पोजीशन वीनस के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि देखो वहां पे डेबिलिटेट हो रहा है ना वो कन्या के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो हाउस भी अपशकुनी है, उसके लिए अच्छा नहीं रहता वो हाउस। अभी जो 3 नंबर वाले हैं उनके लिए देखो 3 4 5 6 7, उनके लिए 5th हाउस से हो रहा है। अभी देखो जो 5th हाउस और 9th हाउस होता है ना कुंडली का, द 5th हाउस एंड द 9th हाउस इज डिवाइन ब्लेसिंग्स। हम्म। 5th house and 9th house is the house of divine blessings. If we have very good planets in 5th house and 9th house, means divine is with us. We are getting blessings from our ancestors. We are getting blessings of all the gods if 5th and 9th house are strong. And if we have placement of Jupiter there, placement of Venus there, then it is very, very excellent placement for wealth, health, everything. 9th हाउस में जैसे अभी किसी के तुला है, हाँ, लिब्रा। जैसे अब देखते हैं, जैसे अभी मैं कुंभ राशि का हूँ, मेरा लग्न कुंभ हम्म। है, तो मेरे 9th हाउस से वीनस का गोचर हो रहा है, यस। तो मनी वाइज हो सकता है अच्छा रहे, मतलब रहेगा अच्छा, कुछ ना कुछ गुड न्यूज आएगी। मेरी बेटी का भी कुंभ लग्नी है। हाँ, तो जो कुंभ लग्न वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये महीना देखिए, अभी क्या है कि अभी मैंने दृष्टि पढ़ाई नहीं है तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेनली देखो ना आप रमेश जी, आप समझोगे, वो 3rd हाउस से जुपिटर की दृष्टि भी पड़ रही है, अमृत योग बन रहा है एक तरह से। हम्म। यस यस। वेरी गुड टाइम है, मतलब एफर्ट्स भी अच्छे होंगे, भाग्य भी अच्छा होगा, और सपोर्ट पूरा भाग्य को एफर्ट सपोर्ट करेंगे, मतलब इस तरह से। 5-10 मिनट रुके और अभी कुछ एक नई चीज बताऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आर वी फ्री फॉर 10 more minutes? तो सो कुछ हम ना कुछ अभी एनालाइज करेंगे, देखिए हम ना जो हमने जितना सीखा है ना, वी विल डू लिटिल इंटरप्रिटेशन, ओके। अच्छा, एक बात और मैं बोल देता हूँ अभी, कि जो अभी क्लास हमारी होगी ना, इस हफ्ते के बाद जो क्लास होंगी, श्वेता जी आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, आप भी सुनिएगा। देखिए क्या है कि अभी सैटरडे संडे जो क्लास है, बेसिक्स की लास्ट क्लास होगी, सारे बेसिक्स खत्म हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और अगली क्लास से हो सकता है कि संडे से या फिर अगले हफ्ते से इट विल बी कंप्लीटली एनालिटिकल पार्ट, ओके, मतलब वी विल एनालाइज थिंग्स मोर, ओके। तो सब लोगों के लिए है कि मतलब अगर आप किसी ने लास्ट क्लास तक का, मतलब जो भी ये जो क्लास होगी यहाँ तक का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब अगले हफ्ते कुछ समझ में आएगा, वरना फिर अगले हफ्ते ऊपर से निकल जाएगा। ये है कहने की बात कि भाई मतलब this after this week, if you don't have basics clear, then you won't understand anything what is going on, okay। अच्छा चलिए, यस मुझे नेक्स्ट। कि यहाँ 4 नंबर लिखा है और यहाँ पे जुपिटर लिखा है, तो ये कैसा प्लेसमेंट हुआ बताइए। 4 नंबर लिखा है और जुपिटर लिखा है,
तो कैसा प्लेसमेंट हुआ? कर्क लग्न है क्या? यस। कर्क लग्न है। क्वेश्चन ये है कि ये कैसा प्लेसमेंट है? एनालिसिस करना है, मतलब बताना है कैसा है ये प्लेसमेंट, है ना? लग्न पता चल गया हमें, कर्क लग्न पता चल गया, आगे बताइए। Jupiter is in first house, हम्म so it's a Dharma, uh, Dharma Trikon. ओके। So it's a benefic planet, Jupiter. हम्म It's also Kendra, so it's a strong effect. So Jupiter has strong effect in the first place, first house. जुपिटर इज एक्सॉल्टेड हेयर। एक्सॉल्टेड की राशि याद करनी है। जुपिटर यहाँ पे एक्सॉल्टेड है कि नहीं है? अरे बताइए। Yes. यस, एग्जॉल्टेड है। तो कैसे रिजल्ट आएंगे यहाँ पे जुपिटर में? 100%। हाँ, 100% रिजल्ट आएंगे। और जुपिटर कौन से हाउस में बैठा है बताइए? केंद्र में बैठा है। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट फर्स्ट हाउस हाउस में है। यानी फर्स्ट हाउस हमारा ओवरऑल हेल्थ को बताता है। यस, लग्न है। इस ओवरऑल Health. हेल्थ बढ़िया रहेगी इसकी। ओवरऑल हेल्थ अच्छी गुड हेल्थ, रहेगी। गुड हेल्थ, यस। बढ़िया। एंड प्रॉस्पेरस भी रहेगा ये। हाँ, प्रॉस्पेरस भी रहेगा क्योंकि जुपिटर जो है प्रॉस्पेरिटी भी डिनोट करता है और ओवरऑल सेल्फ को डिनोट करता है। बताइए चैतन्य जी, And वेल्थ भी अच्छी रहेगी और हेल्थ भी तो अच्छी रहेगी ना? बताइए सुधाकर जी, चैतन्य जी। हाँ हेल्थ, जी। ओवरऑल हेल्थ, फर्स्ट हाउस ओवरऑल हेल्थ, जुपिटर इज सिटिंग देयर, यस, तो ओवरऑल हेल्थ ओके। And body parts, brain and head are related. तो स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी। यस। स्ट्रेस Yes. एंजाइटी क्या होती है? वो शरीर में बीमारी थोड़ी होती है, दिमाग का वहम होता है। व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन कोई बीमारी थोड़ी है, वो तो दिमाग का वहम है। बताइए। तो दिस पर्सन विल बी वेरी लेस प्रोन टू मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। बताइए। फर्स्ट हाउस भैया फादर को भी डिनोट करता है, तो इनके नहीं नहीं, फादर से फादर रिलेशन को तो अच्छा 9th रहेगा। वाला करता है। हाउस, First house, अच्छा सेल्फ को, ठीक है, सेल्फ को करता है तो। फर्स्ट हाउस सेल्फ को करता है ना? सेल्फ। wisdom, happiness. तो देखिए हैप्पी रहेगा ना पर्सन ये? बताइए हैप्पी रहेगा कि नहीं रहेगा? हैप्पी रहेगा। अभी देखिए 4 नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बताइए, चलिए 4 नंबर मैंने कहाँ पे लिख दिया? जुपिटर भी लिख दिया और 4 नंबर लिख दिया। अब हाउस चेंज कर दिया मैंने। अब बताइए। Jupiter is still exalted. क्या? कर्क एक्सॉल्टेड है। Jupiter is still exalted because it's in या Cancer. वेरी गुड, इट्स स्टिल एक्सॉल्टेड बट हाउस इज चेंज, सो रिजल्ट्स विल चेंज। सो व्हाट रिजल्ट्स नाउ इट विल गिव? Fourth house is happiness. हैप्पीनेस। एस होगा, प्रॉपर्टी रहेगी, व्हीकल्स वगैरह में वेरी प्रॉस्पेरिटी गुड रहेगी। रमेश जी, वेरी गुड। व्हीकल्स भी रहेंगे, प्रॉपर्टी भी रहेगी। फोर्थ हाउस परिवार में किसको डिनोट करता है? मदर, मदर मदर को। मदर को मदर के साथ में रिलेशन कैसे होंगे? अच्छे ऑर्डियस होंगे। होंगे, बढ़िया होंगे। मदर की हेल्थ कैसी रहेगी? वो भी अच्छी अच्छी रहेगी। रहेगी। अब हो सकता है कि इसको स्ट्रेस एंजाइटी परेशान करे, क्या इसकी मदर को स्ट्रेस एंजाइटी परेशान करेगी? नहीं, मदर नहीं को नहीं करेगी, करेगी। नहीं करेगी, क्योंकि फोर्थ हाउस में कौन बैठा है? जुपिटर बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? बताइए, क्लियर है? अच्छा, अगर हम ये चाहते हैं कि इसके फादर के साथ में रिलेशन अच्छे रहे, हम्म, फादर की हेल्थ अच्छी रहे, तो जुपिटर को कहाँ प्लेसमेंट करें? बताइए अब चलिए, एक्सॉल्टेड जुपिटर का। 9th हाउस में। वेरी गुड। 9th
वेरी गुड। अभी जुपिटर को यहाँ पे उठा के रख दें, 4 नंबर जुपिटर को। और बताइए फादर की एग्जॉल्टेड हेल्थ कैसी रहेगी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फादर के रहेगी। साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। अच्छे रहेंगे। कॉर्डियल एक मेरे रिलेशंस। आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं हमारे जान पहचान के, एक उनका एक्सॉल्टेड जुपिटर 9th हाउस में बैठा है। उनके फादर की एज अभी 90 के ऊपर जा चुकी है। ही इज ओके 90 प्लस हिज फादर। उनका एक्सॉल्टेड जुपिटर 9th हाउस के अंदर बैठा है, और ही इज आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। तो उनका मतलब सच में ये, किसी का भी आप 4th जुपिटर देख लो और हाउस देख लो, एक्सॉल्टेड जुपिटर है तो जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस की चीजों को क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। बताइए। बताइए, बात समझ में आ रही है। हाँ जी। अब हम ये चाहते अब हम चाहते हैं कि एकदम, बताइए रमेश जी बताइए। एग्जॉल्टेड जुपिटर मान लीजिए 6 में बैठा हो तो क्या होगा? एक्सॉल्टेड जुपिटर तो 6 पे कर दिया। हाँ, क्योंकि ये डेप्थ और रोग का भाव है, नहीं तो हाँ, डेप्थ और रोग का भाव है। तो वो नहीं होंगे, इससे फिर ये होगा। अब देखिए, लॉ, जज, कोर्ट। हाँ देखिए हाँ। जुपिटर यहाँ पे आ गए हैं, तो देखिए अब हम्म। क्या होगा ना कि यहाँ पे जो कोर्ट केस है, जुपिटर बहुत बेनिफिशियल प्लेनेट है। तो देखिए जो कोर्ट केस यस। होंगे ना यहाँ पे, जैसे कोर्ट केस की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, हम्म। कोर्ट केस की। तो कोर्ट केस ना यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, क्या कर देंगे, हम्म। रिड्यूस कर देंगे, मतलब कोर्ट केस कम हो जाएंगे इंसान के। रिड्यूस कर देंगे, ये होगा सर इनके फेवर में होंगे, ऐसा हो सकता है हाँ यदि मतलब वो होंगे तो। रिड्यूस कर देंगे, फेवर में होंगे। वैसे ही एनिमीज जो होंगे वो क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कर देंगे या फिर खत्म भी कर देंगे, है ना। बिल्कुल। अब देखो, एक तो जुपिटर है यहाँ पे, यस। एक मंगल है सपोज करो, है ना। यस। तो मंगल जो है ना, अभी एनिमी आ गया, हम्म। तो मंगल का खत्म करने का तरीका पता है आपको क्या है, वो मार देगा उसे, क्या कर देगा, ओके। मार देगा, यानी कि वायलेंस। वायलेंस क्रिएट करेगा। हाँ, और अगर जुपिटर आ गया तो तो देखो, मंगल भी एनिमी कम करेगा, मंगल भी एनिमी को क्या करेगा, कम करेगा, लेकिन कम उसका तरीका क्या होगा, वायलेंस। और जुपिटर भी एनिमी को क्या करेगा, कम करेगा, लेकिन कम इसका करेगा, तरीका क्या होगा, गांधी जी। आपके गुरुजी की तरह सर। एक गांधीगिरी और एक गुंडागिरी और एक गांधीगिरी। बिल्कुल। गुरु जी, एक गुरु जी की तरह और एक, मतलब बिल्कुल बढ़िया। यस। लेकिन यही है कि कोई चीज अच्छी बुरी नहीं होती। अब आपको देखो, कारगिल वॉर पे युद्ध करने जाना है, सामने दुश्मन खड़ा है, तो गुरु जी को थोड़ी भेजोगे, तब तो मंगल को भेजना पड़ेगा ना, हम्म। है ना। तो हर चीज के अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। यस। अच्छा चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है। यस। अब मैं किससे क्वेश्चन पूछूंगा, श्वेता जी। हाँ भैया। अभी मैं चाहता हूँ कि बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहे पर्सन का, तो उसके लिए जुपिटर को कहाँ पे प्लेसमेंट करें, एक्सॉल्टेड जुपिटर का। अच्छा चलो, आपने रिवीजन नहीं किया चैतन्य जी, चलो आप बताओ। हम चाहते हैं बैंक बैलेंस अच्छा रहे, तो जुपिटर, एक्सॉल्टेड जुपिटर का प्लेसमेंट कहाँ करें। सेकेंड हाउस में। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। सेकंड हाउस में कर देंगे। अब देखो, सेकंड हाउस में जुपिटर ने वेल्थ अच्छी कर दी। सेकंड हाउस हम्म। स्पीच का भी होता है, तो इसकी वाणी बहुत मधुर होगी, क्योंकि सेकंड हाउस से हम वेल्थ के अलावा और भी तो चीजें देखते हैं ना। तो इसकी जो स्पीच होगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, मीठी होगी, मतलब मुंह से बहुत अच्छा बोलेगा। बताइए। सेकंड सेकेंड हाउस हाउस होता के है, लिए हाँ। कारक कारक ग्रह भी जुपिटर ही है ना इसके। बताइए, कारक ग्रह भी जुपिटर है, तब तो बहुत अच्छा है। मल्टीपल हो गया इसको। हम्म। Deepthi, यस यस, सौदागर जी पूछिए। यस। could you explain that Mangal and Jupiter less enemy but violence and non-violence? Because Mangal is fiery planet, it Could will you be explain that fire, part in but English? Jupiter is, benefic sattvic planet, so it will be non-violent. So in both cases, enemies will be less. In one, it would be due to violence, another will be Yeah, due to. yeah. That's the. Both will clear, all clear enemies. Enemies, they will clear, both will clear. अच्छा चलो, हम एक और बस जाते जाते अब खत्म करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं। एक और चीज Yes. बताता हूँ आपको, देखो जैसे जुपिटर है,
वो 4 नंबर में बैठा है तो वो कैसा है? एक्सॉल्टेड। एक्सॉल्टेड। अब एक्सॉल्टेड का मतलब क्या हुआ? उच्च का नहीं, अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, हाँ, एक्सॉल्टेड मतलब क्या हुआ? अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, उच्च अरे का पढ़ो है। तो, क्या लिखा है? मैं पढ़ ही रही पेट हूँ। भरा है, पेट भरा। पेट भरा है, पैसा बहुत है। सेकंड हाउस में जुपिटर रख दिया हमने, चैतन्य जी ने सही बताया, सेकंड हाउस में जुपिटर रख दिया। हम्म, तो पैसा बहुत ज्यादा है, तो ऐसा इंसान क्या पैसा कमाने के लिए मेहनत करेगा? नहीं करेगा। पैसा भगवान ने जरूरत से ज्यादा दे दिया है उसे, एफर्ट्स नहीं होंगे। जुपिटर एक्सॉल्टेड तो है, लेकिन पेट कैसा हो गया? भर गया। समझ में आ रही है? हम्म, तो अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि करने की जरूरत ही नहीं है। अब चीजें ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई जगह बहुत काम आती है। अभी देखो, जुपिटर 11 नंबर में है तो न्यूट्रल साइन के अंदर है। 11 नंबर कुंभ का होता है, बताइए। यस। 11 नंबर किसका होता है? कुंभ कुंभ का। तो इसका मतलब क्या हुआ? जुपिटर कैसा है? का। कैसा है? नहीं समझ में आ रहा, मैं दोबारा कर लिखता हूँ, मेरी थोड़ी हिंदी रुको। हंगरी, हंगरी। हाँ, अभी जुपिटर कैसा है? हंगरी। हंगरी है। अभी सोचो 11 नंबर में मैंने जुपिटर लिख दिया, 11 नंबर में क्या लिख दिया? जुपिटर। और सपोज करो 4th हाउस में लिख दिया, तो जुपिटर एक्सपेंशन भी होता है। जुपिटर क्या होता है? जुपिटर एक्सपेंशन का कारक होता है कि नहीं होता? यस। और वो तो भूखा भी है। हम्म, तो जुपिटर यहाँ से फैलने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हम्म। तो आप ये हम्म, बताइए कि माँ का प्यार पाने के लिए कौन ज्यादा मेहनत करेगा? जुपिटर 4 वाला करेगा कि जुपिटर 11 वाला माँ का प्यार पाने के लिए मेहनत ज्यादा करेगा? फोर फोर वाला 11, 11, 11 वाला 11 वाला करेगा। हाँ, क्योंकि 4 वाले को तो माँ का प्यार ऑलरेडी मिल गया ना, उसी घर में है। उसका पेट भर गया। देखो, हम्म, मैं ये एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बाकी फिर हम इसे अपनी कुंडली में लगा सकते हैं बाद में, है ना। जुपिटर के केस, बाकियों का केस अलग है, तो जुपिटर केस में समझते हैं। 4th हाउस में जैसे सपोज करो जुपिटर भर दिया, और मैंने अगर उसे एक्सॉल्टेड जुपिटर कर दिया 4th हाउस में, तो माँ का प्यार उसे ऑलरेडी मिल गया है। लेकिन अगर वहां पे 11 नंबर होगा तो जुपिटर को माँ का प्यार नहीं मिला, वो माँ का प्यार पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेगा कि मुझे माँ का प्यार मिले उसे। हम्म, समझ में आ रही है? अभी सपोज करो जुपिटर जो है, यहाँ मैंने 11 नंबर के साथ 11th हाउस में रख दिया, तो अब इससे क्या डिनोट होता है बताइए? प्रॉफिट, लाभ था ना, इनकम। अरे हाउस के कैरेक्टरिस्टिक नहीं पूछ रहा हूँ, इससे मतलब क्या हुआ? तो समझ में आया? क्या समझ में आया आपको, ये बताओ। तो पॉजिटिव वही ये सक्सेसफुल होगा, बिजनेसमैन होगा ये। होगा। ये जो पर्सन होगा इसकी इनकम अच्छी होगी कि ये इनकम को बढ़ाने के लिए मेहनत ज्यादा करेगा? इसकी इनकम अच्छी हो जाएगी, अच्छी होगी। मेहनत कम करनी पड़ेगी, बट कम मेहनत में ज्यादा फल मिल जाएगा। राधिका जी, यहाँ 11 नंबर लिखा है, 4 नंबर तो ही लिखा है। वो तो न्यूट्रल साइन में, उसकी इनकम क्यों अच्छी होगी बताइए? वो तो न्यूट्रल साइन में बैठा है, उसको साइन पसंद ही नहीं है ये, क्यों इनकम अच्छी होगी? एक्सॉल्टेड थोड़ी है। अच्छा, अच्छा। कैपिटल। देखिए मैं बताता हूँ, इनकम का जो हाउस है, ये इनकम का हाउस है, वहां पे जुपिटर हम्म, बैठा है न्यूट्रल साइन के अंदर। तो जुपिटर इनकम का भूखा है, उसकी इनकम ज्यादा नहीं है, वो इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेगा यहाँ पे। हम्म, इनकम अच्छी कब होती? जब यहाँ पे 4 नंबर के साथ जुपिटर लिखता। अगर मैं 4 नंबर के साथ जुपिटर लिखता तब इनकम अच्छी होती। डिफरेंस हम्म। समझिए। कैंसर। सब लोग बताइए बताइए, चैतन्य जी, श्वेता जी, रमेश भैया,
मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी भैया। तो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं। और देखिए अभी समझ में आ चुका होगा, ये मैंने बहुत थोड़ा सा ट्रेलर दिया है। अभी अभी आगे यही होने वाला है, एनालिसिस ही करने वाले हैं हम, है ना। तो नोट्स पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, वरना ब्लैंक रहेंगे हम आगे, है ना। तो आई थिंक सबको रिवीजन करना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। श्वेता जी, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द 2 लेफ्ट वीडियोस और प्लीज अटेंड टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो क्लासेस। ट्राई टू अटेंड so that nothing will be pending. And after that from Monday I will give you charts in your group में charts start हो जाएंगे हमारे। I will give you charts for analysis, 1 or 2 important things we will discuss in tomorrow and day after tomorrow class, and we will start doing chart analysis from Monday. Okay भैया। best time for us to revise। और रिवीजन सबको करना होता है। देखो ऐसा नहीं कि मैं रिवाइज नहीं करता, मैं तो मतलब बढ़िया रिवीजन अपना 7 बजे तक मैं ऑफिस से लौट आता हूँ अपने, उसके बाद अपना पूरा टाइम 2-2.5 घंटे एस्ट्रोलॉजी को देता हूँ, ध्यान से करता हूँ। तो सबको देना है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हम भी देते हैं, तो सबको देना है अगर हमारे थोड़ा सा कुछ सीखना है। और अगर आप मेरे हिसाब से चल लिए अभी पूरे दिसंबर में, तो मतलब बहुत आगे पहुंच जाओगे आप, आपके साथ में जितने भी लोग होंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। आपकी लर्निंग इतनी अच्छी 2 महीने में हो जाएगी जितनी 6 महीने में लोगों की लर्निंग नहीं होती, बिकॉज मैं काफी अच्छे से मतलब टेकअप कर रहा हूँ चीजों को यहाँ पे। और आपको सिखाने के लिए मेरे ग्रुप में कोई नहीं बोलता था, मेरा 50 लोगों का ग्रुप था आर्टो लिंक का, जहाँ मैं सीख रहा था। वहाँ प्रोफेशनल थे वहाँ पे सब, वहाँ पे कोई ऐसे नहीं बोलता था कि ये पढ़ो ये करो। उन लेक्चर लिया उसके बाद में काम खत्म, उस तरह का होता था हमारे यहाँ पे। हमारे जो टीचर थे वो कभी कभी बीच में डाल देते थे, बट मतलब मैं पर्सनली यहाँ पे मैसेज डालता हूँ, पढ़ लो सीख लो, मतलब थोड़ा रीड करिए स्टडी करिए ताकि आप लोगों की ग्रोथ अच्छी हो। अभी मैं वही बता रहा हूँ ना कि मेरे साथ में 45 लोगों के बैच में मैं अकेला हूँ जो कोर्स ले रहा हूँ आज अपना। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे भाई देखिए 14 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से 6 या 7 लोग अटेंड करते हैं, उसमें से 2-3 लोग भी अगर मतलब आगे कुछ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली मेरे को बहुत हैप्पीनेस। ठीक है, तो इसी नोट के साथ हम खत्म करते हैं आज का। और किसी को डाउट है तो डाउट है नहीं। सुधाकर जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Yeah, they just want to understand the last one. So when you said Jupiter, Look, 11th, I will explain. If Jupiter is in enemy sign, neutral sign, so it will try to improve in that thing, because Jupiter is Sattvic planet and he want expansion. So if Jupiter is sitting in neutral sign or Jupiter is sitting in enemy sign, then Jupiter will work hard to improve, because Jupiter wants improvement, Sattvic planet. But if Jupiter is in friendly sign or exalted sign, then Jupiter's stomach is full. He won't do efforts. This is the summary, okay? So ऐसे जुपिटर एक्सॉल्टेड वाले मैंने बहुत लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, जो कहते हैं हमें सब पता है, हमें मत सिखाओ, हमें तुमसे ज्यादा पता है। And their learning in life is almost zero, because they don't want to learn new things, because they think that they are supernatural powers. हमें मत सिखाओ, हमारे पास तुमसे ज्यादा ज्ञान है। अभी भैया इसमें जो नवरात्रि सेशन हुए थे ना, तो जयपुर के एस्ट्रोलॉजर हैं वो भैया कुछ सेशन लेते थे वहां पे। तो वो यही कहते थे, जो लोग गुरुजी के इसमें फॉलो कर रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग फॉलोअर्स हैं, मैक्सिमम लोगों के जुपिटर पीड़ित है, डेबिलिटेड है, इसीलिए गुरुजी के पास आए हैं। सही बात अदरवाइज उनको आने की उनको जरूरत नहीं आने की। सच में ये नहीं बोल होती लोगों को जरूरत आने की, क्योंकि उनके यस जो एक्सॉल्टेड होते हैं वो यस सेल्फ प्राइड उनके अंदर बहुत होता है। यस यस तो जैसे मेरी मदर है, तो मेरी मदर ने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी नहीं किया हुआ, सुदर्शन क्रिया भी नहीं करती हैं, उनका जुपिटर एक्सॉल्टेड है। मैं उन्हें कुछ समझाने जाता हूँ 4 बातें मुझे ही समझा देती हैं। तो अपना ज्ञान अपने साथ रखो, हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। और ऐसा नहीं कि मेरी मदर का एग्जाम्पल है, आई हैव मेनी एग्जाम्पल्स कि जुपिटर जिसका एक्सॉल्टेड होता है या फ्रेंडली साइन के अंदर होता है, they are so intelligent that they don't need any assistant, and that's why they sometimes they lack very beautiful thing because of their self pride or this kind of things. So ठीक है, तो खत्म करते हैं आज हमारी हमने काफी अच्छा सेशन हमारा हुआ, काफी नई चीज हमने लर्न करी।
और हमने आज देखियो प्लैनेट्स का वो देखा अभी कैसे प्लैनेट्स मूव हो रहा है, राशि कैसे चेंज हो रही है, एक्सॉल्टेड डेबिलिटेशन भी हमने डिस्कस किया, और भी हमने बाद में फिर हमने ये सब भी बात करा, हमने एनालिसिस भी थोड़ा सा किया। अच्छा सेशन था। और भी कोई क्वेरीज है तो देखिए ग्रुप को एक्टिव रखिए। वो ग्रुप शांत हो गया है बिल्कुल, ग्रुप के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ऐसे कैसे लर्निंग होती है? सब लोग कुछ ना कुछ डालते रहिए। कोई क्वेरी है तो देखिए श्वेता जी ने ग्रुप के अंदर नोट्स मांगे थे, अभी किसी ने नोट्स भी नहीं भेजे अपने, और श्वेता जी ने दोबारा आपने मैसेज भी नहीं किया। भाई वो श्वेता जी आपका ग्रुप है, आपको मैसेज करना चाहिए, प्लीज सेंड दी, प्लीज नहीं सेंड। भैया, मुझे पर्सनल पे आ गया, रमेश भैया ने भेज आ दिए गया ना, थे। वेरी गुड, थैंक यू रमेश जी, आपने भेज दिया श्वेता जी को, है ना? ओके रमेश जी, फिर हम थोड़ी नई स्लाइड्स के ऊपर काम करेंगे, है ना, थोड़ा सा। ओके जो कुछ ओके होता है भैया, तो मैं आपको जरूर। फिर मैसेज करता हूँ या कॉल करता हूँ, है ना? ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं 8 बजे। ओके, जय गुरुदेव। गुड नाइट। गुड डे।